یروشلم کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ابن آدم جاتا ہے تاکہ حوالہ کیا جائے اور لوگ اسے پکڑیں گے, ماریں گے, اس کے منہ پر تھوکیں گے, اس کو رد کریں گے اور وہ مصلوب کیا جائے گا, لیکن وہ پھر تیسرے دن زندہ. اور لکھا ہے وہاں پر 2 شاگرد تھے, وہ پوچھتے ہیں اچھا یسوع یہ بات تیری ختم ہو گئی, ایسا ہو سکتا ہے, ایک ماں آتی ہے کہ میرا بیٹا جو یوحنا ہے اور جو یعقوب ہیں یہ تیری ایک دائیں طرف بیٹھ جائے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, اور ایک بائیں طرف بیٹھ جائے. Nobody trying to get that point کہ یروشلم میں کیا واقعہ ہونے والا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لوگ اپنی پوزیشن کی فکر میں ہیں. کیا یسوع یہ شاگرد چیف منسٹر بن سکتے ہیں, ایسا عہدہ ان کو مل جائے, یہ تو تیرے خاص ہیں, پیار کرنے ہیں, اینڈ آئی بلیو تو ان کو پوزیشن دے گا. لوگ کلام کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے کہ خداوند یسوع مسیح کون سا پیالہ پینے کو ہیں, اور وہاں پر یہ لوگ ہیں جو اس ٹائم دکھ میں تھے, مصیبت میں تھے, پریشانی میں تھے. کسی نے سوال کیا اور اس نے کہا نہیں دوسرے مردے بھی زندہ ہوئے. میں نے کہا آف کورس وہ زندہ ہوئے, خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا. کئی دفعہ خادموں نے زندہ کیا, بہت بڑے بڑے خادم ہیں جن کی دعا سے مردے بھی زندہ ہو گئے, آج بھی زندہ ہوتے ہیں, اس وقت بھی زندہ ہوئے. لیکن پھر کلام مقدس میں جب میں نے ان کو بھائی کو بتایا, میں نے کہا لیکن پھر بھی کچھ certain years after انہیں مرنا پڑا, موت کا مزہ دوبارہ انہوں نے چکھا. زندہ تو ہوئے لیکن دوبارہ موت کے منہ میں چلے گئے. لیکن یسوع مسیح کا زندہ ہونا ایک ڈیفرنٹ بات ہے. انہوں نے موت کو شکست دی اور اس کے بعد موت ان کو قابو نہ کر سکی, قبر انہیں ہولڈ نہ کر سکی, کیونکہ وہ زندہ خدائے قادر مطلق خدا ہے. وہ ایسا خدا ہے جو کہتا ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں. وہ مسیحا ہے, وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. کلام مقدس میں جب ہم مسیح کی شان کو دیکھتے ہیں تو میں ریزوریکشن کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے کتنا حیران کر دینے والا معجزہ کہ اس کے بعد موت بھی ان کے قریب نہیں گئی. موت اسی لیے پال کہتا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا. موت ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہر شخص ڈرتا ہے. دنیا میں کتنا بھی کوئی طاقتور شخص کیوں نہ ہو, جب موت کی باری آتی ہے وہ بھی بلبلاتا ہے اور ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری سانسیں بڑھ جائیں, کچھ سال بڑھ جائیں, میں اپنی پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا. لیکن کوئی اپنے آپ کو ریزوریکٹ نہیں کر سکا. کوئی اپنے ذہن کو, اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل فلسفہ دان, اتنے بڑے بڑے لوگ, شاعر آئے, فلسفہ دان آئے, سائنٹسٹ آئے, کوئی شخص اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکا. یہ طاقت صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. اس لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ریزوریکشن کی پاور کس کے پاس ہے؟ مسیحا کے پاس ہے. کوئی نبی, بڑے بڑے نبی آئے ہیں, بڑے بڑے اسکالرس آئے ہیں, بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں جو بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ بچوں نے مجھ سے پوچھا کوئی جادوگر کوئی ایسے کرشمے کرتا ہے, اس نے پانی پہ چلا, کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا ڈونٹ وری, اگر آپ موسیٰ کے دور میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جادوگروں نے بڑے کرتب کیے اب فرعون کو امپریس کرنے کے لیے, لیکن ایک سرٹن لیول پر آ کر ان کا جادو ختم ہو جاتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن میرے مسیحا کی حکمت ادراک سے باہر ہے. میرا مسیحا بہت اونچا ہے, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہم مسیحا کی قدرت کو جان نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے. وہ اتنا گہرا ہے کہ سمندر اس کو سما نہیں سکتا, وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. تو وہ قبر میں کے اس پتھر کو کیسے ہولڈ, وہ پتھر مسیح کی قدرت کو کیسے ہولڈ کر سکتا تھا؟ کیونکہ ریزوریکشن کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ وہ 3 دن اس لیے وہاں پر گزارے کہ اس سے پیراڈائز میں جانا ضروری تھا. اور قیدیوں کو, وہ تمام
कैदी रूहों को वहां पर से इबलीस के हाथों छुड़ाना जरूरी था। ये 3 दिन एक मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने छोड़े। 3 दिन वो जाकर इबलीस के साथ जंग करता है और वहां से तमाम कैदियों को छुड़ाता है। तमाम कैदी जो अब्राहम, इसहाक, जितने बड़े बड़े अंबिया थे वो सब वहां पर थे और वो एक ही की इंतजार में थे कि कब मसीहा मसलूब होगा, कब वो यहां पर आएगा और वो इबलीस के सर को कुचलेगा और हमें यहां से छुड़ाकर ले जाएगा। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। मसीह का जी उठना हमें इस बात की तरफ लेकर जाता है, हमें सिखाता है कि हमारा यीशु मसीह इख्तियार वाला है। अगर हम अपने बिजनेस को, अगर हम अपनी जिंदगी को उसके इख्तियार में दें तो बरकत आएगी, क्योंकि वो हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। अगर आप बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, आपके घर में कोई ऐसी मुश्किल है जो आपसे हल नहीं हो सकती और उन रिश्तों में से बू आ रही है, जैसे लाजर की बहनों ने कहा अब तो इसकी लाश में से बू भी आ रही है। कोई जख्म इतने पुराने हो गए हैं कि आप सोचते हैं लाइलाज हैं, तो याद रखें कि कलाम मुकद्दस में यीशु क्या कहता है? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आपके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं, खुदावंद उन केसेस को दोबारा से जिंदा कर देगा, क्योंकि वो इख्तियार वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया से हालेलुया। हमारा यीशु इख्तियार वाला है, वो कुदरत वाला है, वो मालिकों का मालिक है, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर आप फ्राइडे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, सैटरडे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसमें यीशु मर चुका है और होप, सब लोग होपलेस हो चुके हैं, तो आपको उसमें से निकलना है, क्योंकि आपका यीशु हमारा मसीहा जिंदा है और वो इख्तियार वाला है और वो सब चीजों पर इख्तियार करता है। फरिश्ते उसको सजदा करते हैं। अगर आप मुकाशफा की किताब में देखें तो वो कहता है ये भी यही ज़िबा किया हुआ बर्रा है जो सिताइश के लायक है, वो इख्तियार वाला है, कुव्वत वाला है, हमें उसकी प्रस्तिश करनी है। रेज़रेक्शन की कुव्वत हमें यह सिखाती है कि हमारा यीशु हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अपनी जिंदगी में से एक दिन कम भी नहीं कर सकते, ना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यीशु कर सकता है। अगर यीशु चाहे तो हमारी जिंदगी के दिन भी बढ़ा सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आसमान पर से 2 चिड़ियां भी उसकी मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। यीशु चाहे तो हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया से हालेलुया से हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो सुनता भी है, जो छूता भी है, जो आता भी है, जो हमारे साथ फेलोशिप करता है, जो सिदरक, मिसक, अबदनजू की आग में उनके साथ दाखिल हो गया, क्योंकि वो इख्तियार वाला है और वो आग पर भी इख्तियार रखता है, जो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, जो पानियों को हुक्म दे सकता है, जो चट्टान बनकर इस्राएल के साथ रहा। ये ऐसा यीशु है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। इख्तियार वाला यीशु, इख्तियार वाला यीशु, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान की सारी कुव्वतें उसको सजदा करती हैं। कलाम मुकद्दस में जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जिंदा को सब कहें, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जिंदगी को, जिंदा उम्मीद को, जिंदगी की बातों को हम और चीजों में क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, पतरस कहता है, शागिर्द कहते हैं, तुझसे जुदा होकर हम कहां पर जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास ही हैं,
सब कुछ तो तेरे पास है, कहां पर जाएं? जिंदा उम्मीद तो तू है, हम कहां पर जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। जिंदा उम्मीद। कई दफा हम अपनी खुशी को, अपनी चीजों को, अपनी खानदानी खुशी को, अपने फिजिकल प्लेजर को ऐसी चीजों में ढूंढते हैं जो मुर्दा हैं। जवान भी, बड़े भी, बूढ़े भी। कुछ लोग कंप्यूटर की गेम्स में इन चीजों को ढूंढते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग में, कुछ लोग फ्रेंडशिप गलत किस्म की, कुछ लोग सेक्सुअल इमोरलिटी में अपने उस प्लेजर को ढूंढते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में, मुर्दा चीजों में हम जिंदगी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम कहता है, फरिश्तों ने क्या कहा? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अगर आपको खुशी चाहिए, पीस चाहिए, इत्मीनान चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, इत्मीनान आए, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, तो आपको जिंदगी देने वाले मालिक के अंदर ढूंढनी पड़ेगी। और वो यीशु मसीह है, जो इख्तियार वाला है, बा इख्तियार है, जो सब कुछ करने पर कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मौत उसे होल्ड नहीं कर सकी। बदरूहें खुशी तो मना रही थी, लेकिन जैसे ही फ्राइडे सैटरडे खत्म हुआ, एकदम से एक फरिश्ता आया और उसने पत्थर को हटाया। पत्थर इसलिए हटाया गया, ये नहीं कि यीशु बड़ा मार खा के कमजोर होया है, यीशु को बड़ा जोर लगना सी जी, यीशु के पास ताकत नहीं थी। यीशु को तो कहने की जरूरत, उसको तो देखने की जरूरत थी। उसने तो पानी को देखा और पानी भी शर्मा कर मैं बन गया। वो तो ऐसा यीशु है जिसने ये नहीं कहा, ऐ पानी मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू मैं बन जा। उसने तो सिर्फ कहा कि मटकों को पानी से भर दो, और पानी को खुद पता था अब हमने कौन सी शक्ल इख्तियार करनी है। तो क्या पत्थर उसके हुक्म नहीं मानेंगे? क्या हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां उसका हुक्म नहीं मानेगी? मानेगी, जब यीशु हम पर निगाह करेगा। सो हमें सिर्फ अपनी जिंदगी को जिंदगी के मालिक के अंदर ढूंढना है, पैसे में नहीं, ऐसी चीजों में नहीं, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी होप, आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, आप सोचते हैं कि मैं बहुत नाकाम शख्स हूं, मैंने बड़े साल इस मुल्क में मेहनत की है, मेरे अंदर सिर्फ परसिक्यूशन है, आप एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप कुचले हुए इंसान हैं, आप हर वक्त रिग्रेट में रहते हैं, याद रखें खुदावंद ने रेजरेक्शन इसलिए की कि आपको बताए कि योर संडे इज कमिंग, आपकी उम्मीद आ रही है, और वो यीशु मसीह है। आपकी उम्मीद किसमें है? यीशु मसीह है, यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें। कई दफा हम सोचते हैं इतने साल हो चुके हैं, अभी तक जिन बातों के लिए हम दुआ कर रहे थे वो हल नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद लोग उस वक्त इसी तरह के सवाल कर रहे थे, ये तो वो मसीहा था जिसने लाजर को जिंदा किया, आप ना बचा सका, अपने आप को ना बचा सका, बड़े डिस्करेज थे। इसलिए याद रखें कि आपका संडे आज भी हो सकता है, आपका रेजरेक्शन डे आज भी हो सकता है। रेजरेक्शन की कुव्वत हमारे लिए डेड हो जाएगी, हमारे लिए यीशु मुर्दा होगा अगर रेजरेक्शन हमारे दिलों में ना हो, अगर रेजरेक्शन हमारी जिंदगियों में ना हो। बहुत सारे मसीही हैं जो आज भी ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं कि वो नाम के तो मसीही हैं, लेकिन अंदर मसीह को कब्र में उन्होंने रखा हुआ है, रोशनी नहीं है। जब पत्थर हटाया गया तो रोशनी निकली। आज भी मुर्दा जिंदगी बसर करते हैं, खुशी नहीं है, क्योंकि जिंदगी के मालिक से हमने खुशी नहीं ली।
मेरी बहनों और भाइयों, अजीज बेटे और बेटियों, सारे जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे यीशु के पास है। आप अपने सारे दुख, अपनी मुश्किलात, अपने सारे मामलात, खानदानी हो, बिजनेस के हो, किसी चीज के भी हो, ऐसा नहीं है कि यीशु के पास मैथ को हम कहें कि यीशु को मैथ नहीं आता, यीशु को साइंस नहीं आती। यीशु ने सबको ज़हन दिया है, हिकमत दी। आप कह के तो देखें, आप एक दफा कहें तो सही, यीशु तो मेरी जिंदगी में आ, अपने इख्तियार को मेरी जिंदगी में ला, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, दिल से उसके पास आए, यीशु उन पत्थरों को हटा देगा, क्योंकि वो कुदरत रखता है, वो जोर वाला खुदा है। पत्थर इसलिए हटाया गया, ऑलमोस्ट 1000 पाउंड का वो पत्थर था, सील किया हुआ, इसलिए हटाया गया कि मैं और आप अंदर जाकर कब्र में देखें कि वहां लाश मौजूद है। यीशु बगैर पत्थर के भी बाहर निकल आ सकता था, क्योंकि उसको पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शागिर्द कमरे में बंद थे और यीशु उनमें जा मौजूद हुआ, वो वहां पर कोई दरवाजा नहीं खुला। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पत्थर इसलिए हटाया कि औरतें, शागिर्द जब आए तो वो देखें कि मैं यहां नहीं हूं। अभी तक उसे अपने दिलों में लटकाया, जी तो उठा ही नहीं वो। अगर जी उठता तो फिर पतरस जैसी कुव्वत हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर जी उठा है तो वो बोल्डनेस क्यों नहीं है? अगर जी उठा है तो हम डरे हुए क्यों हैं? हम सहमे हुए क्यों हैं? हमारी जिंदगियों में कुव्वत क्यों नहीं है? परेशानी क्यों है? हम हर वक्त अपनी कुव्वत को क्यों देखते हैं? हम यीशु की कुव्वत को क्यों नहीं देखते? क्योंकि क्रीड तो हम ये बोलते हैं कि वो मर गया, दफन हुआ, और फिर क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा कहते हैं, पर ऊपर पत्थर रखा हुआ। यीशु ऐसे दे तो मरे ही हो। अपनी जिंदगियों में उसे रेजरेक्ट करें। If you want to live victorious life, you need to have resurrected Jesus in your heart. मसलूब मसीहा नहीं जो सलीब पर लटका है, जिंदा मसीहा जिसने मौत पर फतह हासिल की है। जिंदा मसीहा को अपनी जिंदगी में लें और फिर उसका तजर्बा करें। उसने प्रूव किया, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके दरमियान हूं। आपको पता है, अमावस की राह पर 2 लोग जा रहे थे और वो किसकी बातें कर रहे थे? मूवी थिएटर की चल रही, किसी मैच की, किसी गेम की, अपनी बीवियों की, ससुराल वालों की, किनकी बातें हो रही थी? चल रही इसी माजरे की, यीशु के मुतालिक। तो बाइबल में क्या कहता है? जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से, जब हम यीशु की बातें करेंगे, यीशु वहां मौजूद होगा, यीशु वहां मौजूद होगा और यीशु उनमें मौजूद होगा।